آسمانی خاندان اور خدا ماں، اس موضوع سے میں آپ کے ساتھ خدا کے کلام کا مطالعہ کرنے میں کچھ وقت گزارنا چاہوں گا۔ حال ہی میں مجھے پیرو میں خدا کی کلیسیا کی 60ویں سالگرہ کی یادگاری تقریب میں شرکت کرنے کا موقع ملا۔ اس تقریب میں میں کئی لوگوں سے ملا۔ سرکاری افسران نے بھی شرکت کی تھی۔ کیا پیرو بنیادی طور پر ایک کیتھولک ملک نہیں ہے؟ جب وہ چرچ میں آئے تو انہوں نے مسلسل یہ سوال پوچھا کہ کیا واقعی کتاب مقدس میں خدا ماں کا ذکر ہے؟ میں نے اپنی زندگی میں کبھی ایسا نہیں سنا۔ تاہم ہمیں جائزہ لینا چاہیے کہ کیا واقعی کتاب مقدس اس بارے میں گواہی دیتی ہے؟ کیا ہمیں نہیں لینا چاہیے؟ ہوسے باب 6 آیت 6 میں درج کیا گیا ہے کہ کیونکہ میں خدا شناسی کو سوختنی قربانیوں سے زیادہ چاہتا ہوں۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ خدا عبادت کی نسبت درست سمجھ رکھنے کو ترجیح دیتے ہیں۔ تو پھر خدا جن کی ہم تعظیم کرتے ہیں، کیا صرف خدا باپ ہی ہیں؟ کیا خدا ماں نہیں ہے؟ آج ہمارے آس پاس بہت سے مسیحی ہیں۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو فخر سے کہتے ہیں کہ میں خدا کو جانتا ہوں اور میں کتاب مقدس کے مطابق خدا پر ایمان رکھتا ہوں۔ انہیں یہ بھی سکھایا گیا ہے کہ صرف خدا باپ کی خدمت کرنا ہی ایمان کی درست راہ اور سچائی کی راہ ہے۔ تاہم اگر خدا ماں ہیں تو پھر ان کا ایمان کتاب مقدس سے بالکل مختلف ہے۔ مکاشفہ باب 22 آیت 18 میں خدا ہر اس شخص کو تنبیہ کرتے ہیں جو اس کتاب کی نبوت کی باتیں سنتا ہے۔ جو کچھ کتاب مقدس میں لکھا ہے اس میں نہ تو کچھ بڑھاؤ نہ نکالو۔ کیا خدا نہیں چاہتے کہ بنی نوع انسان نجات کے ان اصولوں پر عمل کریں جو انہوں نے کتاب مقدس میں بنی نوع انسان کی نجات کے لیے بیان کیے ہیں؟ کیا خدا کی طرف سے کوئی ایسی تعلیم نہیں ہے جو سب لوگوں کو بغیر کسی توقع کے توبہ کرنے اور اپنے ابدی آسمانی گھر لوٹنے کی اجازت دیتی ہے؟ اس لیے آج ہم اکٹھے ان سوالات کی تصدیق کریں کہ کیا واقعی خدا ماں کا وجود کتاب مقدس کی سچائی ہے؟ اسے آسمانی خاندان کیوں کہا جاتا ہے؟ تمام کلیسیائیں خدا کو باپ پکارتی ہیں۔ فرقہ وارانہ اختلافات سے پرے اس امر پر تمام کلیسیاؤں کی ایک ہی رائے ہے۔ ہمیں خدا کو صرف باپ کیوں پکارنا چاہیے؟ کیا ایسا اس لیے ہے کہ کتاب مقدس خدا ماں کا ذکر نہیں کرتی؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اس لیے آج آئیں ہم ایک ایک کر کے خدا کی مرضی کو واضح طور پر تلاش کریں۔ آئیں مکاشفہ کی کتاب باب 4 آیت 11 سے دیکھتے ہیں۔ مکاشفہ باب 4 آیت 11۔ اے ہمارے خداوند اور خدا، تو ہی تمجید اور عزت اور قدرت کے لائق ہے، کیونکہ تو ہی نے سب چیزیں پیدا کی اور وہ تیری ہی مرضی سے تھیں۔ اور خدا کی مرضی سے سب چیزیں کیا ہوئیں؟ پیدا ہوئیں۔ یہاں خدا کے کلام کی اس تعلیم میں کچھ ایسا ہے جس پر ہمیں توجہ دینی چاہیے۔ سب چیزیں کیسے پیدا کی گئیں؟ وہ خدا کی مرضی کے مطابق پیدا کی گئیں۔ حتیٰ کہ سڑک کے کنارے لڑکنے والے پتھر کے لیے بھی خدا نے ایک وجہ مقرر کی ہے کہ وہ اس مخصوص وقت اور مخصوص جگہ پر موجود ہو۔ کیا کوئی ایسی چیز ہے جو بے مقصد پیدا کی گئی ہو؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ ایک بھی انسانی زندگی ایسی نہیں جو بے مقصد پیدا کی گئی ہو۔ آپ سب ہمیں کس پر توجہ دینی چاہیے؟ بنی نوع انسان کے دریافت کردہ ستاروں کے مختلف نظاموں میں سے زمین ہی وہ واحد جگہ ہے جہاں زندگی منفرد طور پر وجود رکھتی ہے۔ سائنس نے ابھی تک اس سے زیادہ ترقی نہیں کی ہے۔ اسے انسانی حد کے طور پر دیکھا جا سکتا ہے۔ زمین پر سب کچھ خدا کی مرضی کے مطابق بنایا گیا تھا۔ یہی بات زندگی پر بھی لاگو ہوتی ہے۔ آسمان میں اڑنے والے پرندوں، سمندر کی مچھلیوں اور میدان میں گھومنے والے مختلف اقسام کے جنگلی جانوروں کے ساتھ بھی ایسا ہی ہے۔ انسانوں کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوتا ہے۔ کیا کوئی ایسی ہستی ہے جسے ماں کے بغیر زندگی بخشی گئی ہو؟ بالکل نہیں۔
ताकतवर बाप बच्चों को जन्म क्यों नहीं दे सकते? खुदा की दूरअंदेशी को इस तरह तरतीब दिया गया है कि माँ के वसीला बच्चे पैदा हो सकते हैं। जमीन पर जिंदगी के वजूद की वजह माएँ हैं। समुद्र की मछलियों के बारे में सोचें। तसव्वुर करें कि वहां कोई माँ मछली नहीं है। क्या समुद्र में जिंदगी मौजूद हो सकती है? आसमान पर उड़ते हुए तमाम परिंदों को देखें। अगर कोई माँ परिंदा ना हो तो क्या परिंदों की दुनिया में जिंदगी मौजूद हो सकती है? इंसानी जहान के साथ भी ऐसा ही है। क्या ये माओ के वजूद की वजह से नहीं है कि जमीन कायनात में जिंदगी का मुनफरिद सैयारा है? आए रोमियो की किताब बाब 1 आयत 18 से देखते हैं। रोमियो बाब 1 आयत 18। क्योंकि खुदा का गजब उन आदमियों की तमाम बेदीनी और नाराजगी पर आसमान से जाहिर होता है जो हक को नाराजगी से दबाए रखते हैं। क्योंकि जो कुछ खुदा की निस्बत मालूम हो सकता है वो उनके बातिन में जाहिर है, इसलिए कि खुदा ने उसको उन पर जाहिर कर दिया। क्योंकि उसकी अनदेखी सिफतें यानी उसकी अजली कुदरत और अलूहियत दुनिया की पैदाइश के वक्त से क्या बनाई हुई चीजों के जरिए से मालूम होकर साफ नजर आती हैं, यहां तक कि उनको कुछ उज़र बाकी नहीं। इसका मतलब है कि क्या सब चीजों को देखने से हम खुदा की मर्जी को समझ सकते हैं या नहीं? चूंकि खुदा ने हर चीज वाज़ेह बनाई है तो हम उनकी मर्जी को समझ सकते हैं। खुदा ने सब चीजों को इस तरह से पैदा किया कि बनिनू इंसान ये उज़र इस्तेमाल नहीं कर सकते कि हम खुदा माँ को नहीं जानते थे क्योंकि हमने उनके बारे में नहीं सुना। क्या सिर्फ जानवरों की दुनिया में ऐसा है? पौधों की दुनिया में भी यही बात लागू होती है। सड़क के किनारे बहुत से दरख्त हैं। खजा में जिनको के तमाम दरख्त जो मेवेदार होते हैं वो मादा दरख्त हैं। क्या मैंने बहुत वाज़ेह बात नहीं की है? अगर मादा दरख्त ना होते तो पौधों की दुनिया में जिंदगी का वजूद ना होता। यही वजह है कि माँ जिंदगी की हस्ती है। माओ के बगैर दुनिया मौत की दुनिया है जहां जिंदगी वजूद नहीं रख सकती। खुदा ने यह भी कहा क्योंकि उसकी अनदेखी सिफतें यानी उसकी अजली कुदरत और अलूहियत दुनिया की पैदाइश के वक्त से बनाई हुई चीजों के जरिए से मालूम होकर साफ नजर आती हैं, यहां तक कि उनको कुछ उज़र बाकी नहीं। इसलिए कोई भी ये कहकर उज़र पेश नहीं कर सकता कि हमने कभी खुदा बाप और खुदा माँ के बारे में नहीं सुना, इसलिए हम उन पर ईमान नहीं ला सके। अगर खुदा बाप हैं तो फितरी तौर पर और किसको होना चाहिए? बदकिस्मती से आज लोग इसरार करते हैं कि खुदा एक ही है यानी खुदा बाप। लेकिन जो किताब मुक़द्दस वो पढ़ते हैं और जो किताब मुक़द्दस हम पढ़ते हैं वो बिल्कुल एक जैसी हैं। चाहे ये अंग्रेजी किताब मुक़द्दस हो, असल इब्रानी किताब मुक़द्दस या असल यूनानी किताब मुक़द्दस, तमाम किताब मुक़द्दस एक जैसी हैं। हालांकि इस किताब मुक़द्दस में खुदा ने पेशतर ही इसे अपनी मर्जी के मुताबिक तरतीब दे दिया है ताकि जिंदगी माँ के बगैर पैदा ना हो सके। चाहे पौधों की दुनिया हो, आसमान में उड़ने वाले परिंदों की दुनिया हो, मैदान में दौड़ने वाले जंगली जानवरों की दुनिया हो या पानी में मछलियों की दुनिया हो, माँ के बगैर किसी भी दायरे में जिंदगी वजूद नहीं रख सकती। इसे इस तरह से किसने बनाया? ना आपने इसे इस तरह बनाया था, ना ही मैंने इसे ऐसा बनाया था। खुदा ने इसे इस तरह बनाया है। सवाल यह है कि खुदा ने उन तमाम जानदारों के जरिए जो उनकी मर्जी को जाहिर करते हैं बनिनो इंसान को क्या समझाया है? तमाम जिंदगी वाकई मुख्तसर और आरसी है, इसलिए हम सब अब तक जिंदा रहने की उम्मीद रखते हैं। हमारे लिए अब्दी जिंदगी की दुनिया की तरफ बढ़ने के लिए खुदा ने तमाम बनिनो इंसान को किताब मुक़द्दस के जरिए बताया कि सिर्फ खुदा बाप ही नहीं बल्कि खुदा माँ भी हैं। आइए हम पैदाइश की किताब बाब 1 आयत 26 पर एक नजर डालें। आइए पैदाइश बाब 1 आयत 26 से खुदा का कलाम देखते हैं। फिर खुदा ने कहा कि खुदा ने किसको बनाया? इंसान को अपनी सूरत पर
अपनी शबीह की मानद बनाएं। ये सिर्फ एक खुदा नहीं थे जिन्होंने इंसान को पैदा किया। आप सब, चूंकि हर मुल्क में बाइबल सोसाइटीज हैं, इसलिए इन बाइबल सोसाइटीज से अवामी तौर पर मंजूर शुदा तराजुम शाया किए जाते हैं। इसका मतलब यह है कि हर बात का तर्जुमा किताब मुक़द्दस की असल जुबान से मुताबिकत रखता है, उसमें भी हम लिखा गया है। हिस्पानवी किताब मुक़द्दस, कोरियाई किताब मुक़द्दस और यहाँ तक कि असल इब्रानी किताब मुक़द्दस भी जमा सिगा इस्तेमाल करती है। खुदा ने कहा, हम इंसान को अपनी सूरत पर अपनी शबीह की मानद बनाएं। इसके बावजूद दुनिया के तमाम कलीसियाएं इसरार करती हैं कि एक खुदा ने हम इंसानों को पैदा किया। ताहम इस जुमले से कि हम बनाएं, यह वाज़ेह है कि यहाँ एक खुदा की बात नहीं हो रही है। अगर खुदा सिर्फ एक होते तो क्या यह दुरुस्त इज़हार बयान ना होता कि मैं इंसान को अपनी सूरत पर अपनी शबीह की मानद बनाऊंगा। खुदा जिन्होंने बनीनो इंसान को पैदा किया एक नहीं है। इसका इनकार करना किताब मुक़द्दस का इनकार करने के मुतरादिफ होगा। तो फिर इसे हम के तौर पर क्यों बयान किया गया है? जवाब आयत 27 में है। आइए आयत 27 देखते हैं। खुदा ने इंसान को अपनी सूरत पर पैदा किया, खुदा की सूरत पर उसको पैदा किया। खुदा ने किनको पैदा किया? नरो नारी उनको पैदा किया। जब खुदा ने कहा हम इंसान को अपनी सूरत पर बनाएं, तो एक नर और एक नारी बनाए गए थे। तो फिर क्या इसका मतलब यह नहीं कि नर सूरत में भी खुदा वजूद रखते हैं और नारी सूरत में भी खुदा का वजूद है? अगर खुदा के पास नर सूरत और नारी सूरत ना होती तो नर और नारी कैसे पैदा हो सकते थे? हकीकी खुदा को दुरुस्त तौर पर जमा सीगा में बयान किया गया है, क्योंकि खुदा की नर सूरत भी है और नारी सूरत भी है। क्या यह सच नहीं है? इस वजह से हम खुदा की नर सूरत को खुदा बाप कहते हैं। तो फिर फितरी तौर पर हमें खुदा की नारी सूरत को क्या कहना चाहिए? क्या बाप वो नहीं है जो हमें जिंदगी देते हैं? माँ भी वो है जो हमें जिंदगी देती है। हयातियाती साइंस में बहुत से साइंसदानों ने इन सवालात का जवाब ढूंढने के लिए तहकीक की है कि जिंदगी का मंबा क्या है और जिंदगी कहाँ से शुरू होती है, और उन्होंने दरियाफ्त किया कि यह माँ के माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए के जरिए औलाद में मुंतकिल होती है। इसका मतलब यह है कि सिर्फ बाप के जरिए जिंदगी हरगिज मुकम्मल नहीं हो सकती। यह जिंदगी का एक हैरत अंगेज भेद है जिसे साइंस ने जाहिर किया है। ताहम आज बहुत से उल्मा और कई कलीसियाएं इस बात पर क्यों इसरार करती हैं कि खुदा सिर्फ एक ही है, यानी खुदा बाप? जब हम किताब मुक़द्दस की तमाम तारीख पर गौर करें तो हम किताब मुक़द्दस में एक इनफरादियत दरियाफ्त कर सकते हैं, यानी मर्दाना तसल्लुत। ये काम मर्दाना तसल्लुत से है। पुराने अहदनामा की तारीख में और नए अहदनामा में यसू के जमाना में ऐसा ही था। क्या इन दिनों बहुत से लोग हकूकी निस्वान जैसी तहरीकों में शामिल नहीं हैं? इसके अलावा पेरू, जहां मैंने दौरा किया था, वहां सदर एक खातून है। अमेरिका में भी क्या इस वक्त एक खातून सदारती उम्मीदवार नहीं है? जब हम सारी दुनिया पर नजर डालें तो हम देख सकते हैं कि माजी के मुकाबले में औरतों ने बहुत तरक्की की है। ये तमाम मामलात किताब मुक़द्दस की तालीमात से गैर मुतल्लका नहीं हैं। अब तक औरतों को महज मर्दों के साथ मुंसलिक मातहत शख्सियत समझा जाता है। नतीजतन जब पुराने अहदनामा में मर्दमशुमारी की जाती थी तो उसमें हमेशा औरतों को शुमार नहीं किया जाता था। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। माजी में कोरियाई मुआशरे में घर के मरकजी दरवाजों पर लगी तख्तियों पर सिर्फ बाप का नाम लिखा होता था, उसमें माँ का नाम हरगिज शामिल नहीं होता था। ऐसे तसव्वुरात और नजरियात थे कि औरतों को मर्दों के मातहत मखलूक समझा जाता था।
اگرچہ لوگ خدا کو باپ پکارتے ہیں لیکن وہ خدا ماں کے وجود کو تسلیم کرنے اور ان پر ایمان رکھنے میں ناکام رہتے ہیں۔ کیا خدا کے سوا کوئی اور ہمیں زندگی دے سکتا ہے؟ نہیں، ایسا کوئی نہیں ہے۔ چونکہ نر صورت کا خالق اور ناری صورت کی خالق تھی، اس لیے کتاب مقدس میں درج ہے کہ خدائے خالق نے کہا ہم انسان کو اپنی صورت پر اپنی شبیہ کی مانند بنائیں۔ ایسا نہیں ہے کہ خدا ماں کا وجود نہیں ہے، انہیں لوگوں کے معاشرتی رسم و رواج سے مکمل طور پر مٹا دیا گیا تھا۔ تو پھر خدا ماں کے وجود کا اعلان بنی نوع انسان پر کب کیا جائے گا؟ آئیں اس کی تصدیق مکاشفہ کی کتاب کے باب 19 سے کرتے ہیں۔ مکاشفہ کی کتاب باب 19 آیت 6 سے دیکھتے ہیں۔ باب 19 آیت 6۔ پھر میں نے بڑی جماعت کی سی آواز اور زور کے پانی کی سی آواز اور سخت گرجوں کی سی آواز سنی کہ ہلیلویا، اس لیے کہ خداوند ہمارا خدا قادر مطلق بادشاہی کرتا ہے۔ آؤ ہم خوشی کریں اور نہایت شادمان ہوں اور اس کی تمجید کریں، اس لیے کہ برا کی شادی آ پہنچی۔ برا کس کو ظاہر کرتا ہے؟ برا یسوع کو ظاہر کرتا ہے۔ جب یسوع اس زمین پر آئے تو کیا انہوں نے شادی کی تھی؟ تاہم یہاں خدا نے یوحنا رسول کو بخشے گئے مکاشفہ کے ذریعے تمام بنی نوع انسان پر یہ ظاہر کیا ہے کہ برا یعنی یسوع مسیح کی شادی آ پہنچی ہے۔ اور کس نے اپنے آپ کو تیار کر لیا ہے؟ یہ لکھا ہے کہ اس کی بیوی نے اپنے آپ کو تیار کر لیا ہے۔ پیدائش میں موجود خدا باپ اور خدا ماں بالآخر مکاشفہ باب 19 میں یوحنا رسول کے مکاشفہ کے ذریعے ظاہر ہوئے ہیں، اس لیے کہ برا کی شادی آ پہنچی اور اس کی بیوی نے اپنے آپ کو تیار کر لیا اور اس کو چمکدار اور صاف مہین کتانی کپڑا پہننے کا اختیار دیا گیا، کیونکہ مہین کتانی کپڑے سے مقدس لوگوں کی راست بازی کے کام مراد ہیں۔ یوحنا باب 1 آیت 29 میں کیا یوحنا بپتسمہ دینے والے نے یسوع کو خدا کا برا نہیں کہا تھا؟ دیکھو یہ خدا کا برا ہے جو دنیا کے گناہ اٹھا لے جاتا ہے۔ یہ ہم پر واضح طور پر ظاہر کیا گیا ہے کہ برا یعنی یسوع مسیح کی بیوی موجود ہے۔ یوحنا رسول کو بہت تجسس تھا کہ یہ برا کی بیوی کون ہے۔ آئیں باب 21 کی طرف جاتے ہیں۔ مکاشفہ باب 21 آیت 9 سے دیکھتے ہیں۔ پھر ان 7 فرشتوں میں سے جن کے پاس 7 پیالے تھے اور وہ پچھلی 7 آفتوں سے بھرے ہوئے تھے، ایک نے آ کر مجھ سے کہا ادھر آ، میں تجھے دلہن یعنی برا کی بیوی دکھاؤں۔ یوحنا بہت خوش ہوا جب فرشتے نے کہا کہ وہ اسے برا اور اس کی بیوی دکھائے گا۔ آیت 10 سے جاری رکھتے ہیں۔ اور وہ مجھے روح میں ایک بڑے اور اونچے پہاڑ پر لے گیا، اور اس نے اسے کیا دکھایا؟ شہر مقدس یروشلم کو آسمان پر سے خدا کے پاس سے اترتے دکھایا۔ فرشتے نے کہا میں تجھے برا اور برا کی بیوی دکھاؤں گا۔ اور اس نے یوحنا کو کیا دکھایا تھا؟ اس نے اسے شہر مقدس یروشلم دکھایا۔ کتاب مقدس کے تمام کلمات کی جفت آیات ہیں۔ اگر ہم جفت آیات کو صحیح طور پر نہیں جوڑتے ہیں تو ہم خدا کی حقیقی مرضی کو جان نہیں سکتے۔ اب آئیں ہم جفت آیات کا جائزہ لیتے ہوئے دیکھتے ہیں کہ یروشلم یہاں کس کو ظاہر کرتا ہے۔ غلطیوں باب 4 غلطیوں باب 4 آیت 26 میں یہ لکھا ہے کہ مگر عالم بالا کی یروشلم آزاد ہے، اور وہی وہ کون ہے؟ ہماری ماں ہے۔ روحانی نقطہ نظر سے برا ہمارے باپ کو ظاہر کرتا ہے اور برا کی بیوی ہماری ماں کو ظاہر کرتی ہے۔ آپ سب کیا لفظ ماں کتاب مقدس میں ہے یا نہیں؟ کتاب مقدس میں واضح طور پر بیان کیے جانے کے باوجود ان تمام سچائیوں کو ہزاروں سالوں سے چھپایا گیا ہے، اور یہ اہمکانہ دعویٰ کہ خدا صرف ایک ہے آج تک جاری ہے۔ تاہم خدا ماں پر ایمان لائے بغیر دنیا کی کوئی بھی کلیسیا اس کلیسیا میں تبدیل نہیں ہو سکتی جس میں ابدی زندگی کا وعدہ ہو۔
변화될 수가 없습니다. यकीनन हमारे पास खुदा बाप है, 하나님도 존재하지만 लेकिन हमारे पास और कौन है? 어머니 चूंकि खुदा माँ भी वजूद रखती हैं, 아버지 하나님 तो हमें एक ऐसी कलीसिया ढूंढने की जरूरत है 하나님에 대한 जो खुदा बाप और खुदा माँ दोनों पर दुरुस्त ईमान रखती है। आए मुकाशफा की किताब बाब 22 की तरफ जाते हैं। मुकाशफा बाब 22 आयत 17 से देखते हैं। और रूह और दुल्हन कहती हैं, ये अल्फाज जो मुकाशफा बाब 19 और 21 में बरा और बरा की बीवी और बरा और उसके दुल्हन के तौर पर बयान किए गए हैं, उन्हें मुकाशफा बाब 22 आयत 17 में रूह और दुल्हन के तौर पर बयान किया गया है। तसलीस के मुताबिक रूह खुदा बाप को जाहिर करता है। ये कहने की जरूरत नहीं है कि दुल्हन खुदा माँ है। खुदा बाप और खुदा माँ कहते हैं आ, और सुनने वाला भी कहे आ, और जो प्यासा हो वो आए, और जो कोई चाहे आबे हयात मुफ्त ले। जब निजात का दिन नजदीक आता है तो रूह और दुल्हन पैगाम रसानी करने वालों को, मुबशरान को और नबियों को भेजेंगे कि हर एक को खुदा बाप और खुदा माँ की तरफ वापस बुलाएं। यूं सारी दुनिया को जिंदगी के जहान में ले जाने की गर्ज से खुदा बाप और खुदा माँ इस वक्त तमाम बने नूह इंसान को ढूंढ रहे और बुला रहे हैं। आइए हम मत्ती बाब 6 की तरफ जाते हैं, जहां यसु ने हमें खुदा बाप और खुदा माँ के बारे में सिखाया जब वो 2000 साल पहले इस जमीन पर आए थे। क्या इब्रानियों बाब 8 आयत 5 में यह बयान नहीं किया गया कि आसमान और जमीन के असूलों के दरमियान हकीकत और अक्स का ताल्लुक है? हम मत्ती की किताब बाब 6 आयत 8 की तरफ जाते हैं। बस उनकी माइंड ना बनो, क्योंकि तुम्हारा बाप यानी खुदा तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता है। यसु ने हमें सिखाया कि खुदा हमारे बाप हैं। आयत 9, बस तुम इस तरह दुआ किया करो कि हमें कैसे दुआ करनी चाहिए? ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए। इस तरह उन्होंने हमें खुदावंद की दुआ सिखाई जिससे हम अच्छी तरह वाकिफ हैं। तो फिर क्या आसमान पर सिर्फ बाप ही हैं? जैसा कि हमने पहले गलतियों बाब 4 आयत 26 में देखा, मगर आलमे बाला की यरूशलेम आजाद है। और वो कौन है? वो हमारी माँ है। आलमे बाला से मुराद आसमान है। हमारे बाप जो आसमान पर हैं, हमारी माँ जो आसमान पर हैं। इसीलिए हम तस्दीक कर सकते हैं कि हमारी रूहों के खुदा बाप हैं और हमारी रूहों के खुदा माँ भी हैं। ये सच्चाई पूरी किताब मुक़द्दस में, यानी खुदावंद की दुआ में, मुकाशफा की किताब में, यूहन्ना रसूल को दिए गए मुकाशफा में, पैदाइश की किताब के बाब 1 में और गलतियों की किताब के बाब 4 में पाई जाती है। आप सब, बाप के वजूद का क्या मतलब है? इससे जाहिर होता है कि वहां बच्चे भी हैं। चाहे आपकी उम्र 100 साल हो, लेकिन अगर आपके बच्चे नहीं हैं तो क्या आप बाप कहला सकते हैं? नहीं, आप नहीं कहला सकते। खुदा के बाप कहलाए जाने की गर्ज से वाज़े तौर पर उनके बच्चे होने चाहिए। जिस तरह जमीनी खानदानों में बाप और बच्चे होते हैं, उसी तरह रूहानी खानदान में भी यकीनन बाप और बच्चे हैं। इसीलिए जमीनी चीजें आसमानी चीजों की नकलो अक्स कहलाती हैं। आए दूसरे कुरिन्थियों की किताब बाब 6 की तरफ जाते हुए देखते हैं कि क्या आसमान में रूहानी फर्जंद हैं। दूसरा कुरिन्थियों बाब 6 आयत 17 में यह लिखा है कि इस वास्ते खुदावंद फरमाता है कि उनमें से निकलकर अलग रहो और नापाक चीज को ना छुओ, तो मैं तुमको कबूल कर लूंगा और तुम्हारा बाप हूंगा, और तुम कौन होगे? मेरे बेटे बेटियां होगे। ये किसका कौल है? ये खुदावंद कादर मुतली का कौल है। खुदा ने खुद हमें यह तालीम बख्शी है। खुदा ने पेशतरी हमें मुकम्मल तौर पर समझाया कि मैं तुम्हारा बाप हूंगा और तुम मेरे बेटे बेटियां होगे। तो फिर क्या बच्चों का वजूद इसलिए नहीं है कि किसी ने उन्हें जिंदगी बख्शी है?
누군가가 생명을 주었기 때문 아니겠습니까? जब हम ज़मीनी निज़ाम को देखें 바라보게 되면 तो जिस्मानी ज़िंदगी जिस्मानी माँओं से दी जाती है, तो फिर क्या रूहानी माँ के बगैर अब्दी रूहानी ज़िंदगी दी जा सकती है? बिल्कुल नहीं। इसीलिए गलतियों बाब 4 आयत 26 में ये लिखा है कि मगर आलम बाला की यानी आसमानी की रुशली आजाद है, और वही वो कौन है? हमारी माँ है। किताब मुक़द्दस के जरिए खुदा ने वाज़े तौर पर हम पर जाहिर किया है कि वाकई हमारी माँ है। अगर माँ नहीं है तो क्या लफ्ज़ बाप की जरूरत है? हम महज खुदा कह सकते थे। बाप एक लक़ब है जो खुदा माँ को अलग करने के लिए दिया गया है। आए इसकी तस्दीक जारी रखते हैं। आयत 28, बस ऐ भाइयों, हम इज़हाक की तरह वादा के फर्जंद हैं, और जैसे उस वक्त जिस्मानी पैदाइश वाला रूहानी पैदाइश वाले को सताता था, वैसे ही अब भी होता है। मगर किताब मुक़द्दस क्या कहती है? ये कि लोंडी और उसके बेटे को निकाल दे, क्योंकि लोंडी का बेटा आजाद के बेटे के साथ हरगिज़ वारिस ना होगा। बस ऐ भाइयों, हम लोंडी के फर्जंद नहीं, बल्कि हम किसके फर्जंद हैं? आजाद के हैं। आयत 26 कहती है, मगर आलम बाला की यरूशलेम आजाद है, और वही हमारी माँ है। और आयत 31 कहती है, हम लोंडी के फर्जंद नहीं, बल्कि आजाद के हैं। इसीलिए असल किताब मुक़द्दस में खुदा के लिए वाहिद सिगा की बजाय तकरीबन 2500 बार जमा सिगा एलोहिम इस्तेमाल किया गया है। जमा सिगा इस्तेमाल करने की एक वजह थी। कितने खुदा हैं? चूंकि खुदा बाप और खुदा माँ दोनों वजूद रखते हैं, इसलिए ये असल किताब मुक़द्दस में जमा सिगा के तौर पर लिखे गए हैं। इसराइल से लिया गया लफ्ज़ एलोहा या एल एक वाहिद सिगा है। अगरचे वाहिद सिगा है, पर खुदा ने जमा सिगा इस्तेमाल किया, क्योंकि ये बहुत अहम मफ़हूम का हामिल है। क्या उन्होंने नहीं किया? तमाम कलीसियाओं के इत्तेकाद के बरक्स खुदा अपने आप को सिर्फ एक खुदा के तौर पर जाहिर नहीं करते हैं। मेहरबानी से उन तमाम लोगों को जो सिर्फ खुदा बाप के बारे में जानते हैं, उन्हें खुदा माँ के बारे में उस किताब मुक़द्दस से सिखाएं जिसे वो पढ़ते हैं। मेहरबानी से अपने आस पड़ोस के सब लोगों को बताएं। अगरचे वो कहते हैं मैंने किताब मुक़द्दस पढ़ी है, मगर वो उन लोगों की गलत तालीम की पैरवी कर रहे हैं जो ये इसरार करते हैं कि सिर्फ खुदा बाप है, और महज ऐसे इल्म को मुंतकिल कर रहे हैं। इसलिए आपको किताब मुक़द्दस की बुनियाद पर सही तौर पर हर एक की रहनुमाई ईमान की राह पर करने के काबिल होना चाहिए। ये उम्मीद करते हुए कि आप सब इस बात को यकीनी बनाने की कोशिश करेंगे कि तमाम बनीनू इंसान खुदा माँ की मोहब्बत के वसीला मुत्तहिद हों, हम आहंग हों और एक बने, और ऐसा करते हुए आप जिंदगी की दुनिया को आगे बढ़ाएंगे। मैं आज का वाज खत्म करना चाहूंगा। आपका बहुत शुक्रिया।